Swamiji is here. We will ask him those questions. We'll try to cover as many questions as possible. So just stay here. So one of the questions is about ABPA, or it's related to tendency to get into infections consistently. So how does this program help? So it's all related to fungal issue, fungal infestation. आपके लंग्स में फंगस का डेवलपमेंट हो गया. ये फंगस होता क्या है? What is this fungus and where it grows? कहाँ पे फंगस ग्रो होता है? Where there is no sunlight and lot of moisture. Now lungs में sunlight तो जाएगा नहीं, but what we are referring to is the heat generating capacity of the body. तो अगर आपके बॉडी में हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम है, then you'll see fungal infestation will happen. Or be any area of the body wherever the fungus is happening. अगर वहां पे अगर आप हीट किसी तरीके से वहां पे बढ़ा दें, if you increase the heat of that area, you'll see the fungal infection will go away. But if you take antifungal, बोली antifungal लोगे, if you take antifungal, what will happen? It will come back again and again. The fungus infection doesn't go very easy because it has something to do with your heat generating capacity, which any pill cannot do, isn't it? It has something to do with your metabolic heat also. In a larger umbrella, we call it गाढ़े पत्ते अग्नि. तो क्या fungal infection ठीक हो जाएगा? So I would rather tell you to do some experiment. कुछ experiment करने में बोलूँगा. तो आपको पता चल जाएगा. You will get to know that yes, you can come out of this problem very easily. If you hold your breath till your capacity, अपनी capacity के हिसाब से आप अगर सांस रोकते जाएं, inhale, hold your breath, exhale, inhale, hold your breath, exhale, hold it till your capacity. जितना आराम से आप रोक सकते हैं उतना रोकिए. Do it for 10 minutes. बीच बीच में रिलैक्स करके 10 मिनट के लिए करो. What most of you will observe, आप सभी में से काफी लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? Many will start sweating. कई लोगों को ना पसीना आना शुरू हो जाएगा. So what happened? By doing that, what you did, you generated heat inside your body. कुंभक से आपके शरीर का हीट जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. Why you start sweating or why the body generates heat when you work? जब आप काम करते हैं, कोई हेवी काम करते हैं, तो एकदम से शरीर गर्म हो जाता है. आप चलेंगे, you walk for approximately 40 minutes. Your whole body will warm up, isn't it? But मैं कह रहा हूं कि you walk by doing कुंभक only. आप कोई भी काम करते हैं, पीछे आप कुंभक ही कर रहे हैं. If you pull or push or lift weight or do any effort, कोई भी effort लगा रहे हो, आप पीछे सांस रोकते. So whatever action you do it through कुंभक, है ना? तो वॉक करना कई लोगों को पॉसिबल नहीं होगा, एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, कुंभक करना सबको पॉसिबल. So even people who can't do any activity because their breath becomes very heavy और breathlessness feel करते हैं, अगर ऐसे भी लोग हैं, तो if you start doing कुंभक, your breathlessness will go away. षडबल स्थापना जो है हम इसमें करते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप देखेंगे आप ज्यादा काम कर पा रहे, एनर्जी ज्यादा है, बट हीट जनरेटिंग कैपेसिटी जैसे ही ज्यादा होगी, ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम. ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम. अगर दवाई लेके इसको ठीक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने बॉडी पे काम तो किया नहीं. जो बीमारी को तो ठीक किया नहीं, आपने थोड़ा मैनेज कर दिया उसको, है ना? थोड़ा गोली मार दी उसको, फंगस को, तो बेचारा थोड़ी देर के लिए मर जाएगा, मगर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं आपके शरीर की, फिर वापस आ जाएगा. सो यू विल फाइंड इट इन एवरी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन. फंगल इन्फेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा ही. आप बार बार दवाई लेंगे, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हो गया, फिर दवाई लेंगे, फिर जाएंगे. तो
इफ यू डू कुंभक, ये हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। How does Kumbhak therapy or respiratory ailment help in structural deformities or problems caused by structural deformities like sleep apnea, nasal sputum deviation? ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, ये किसने बोला आपको? है ना, ये किसने बोला कि ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है? किसी ने तो बोला होगा आपको, आपको तो नहीं मालूम, किसी ने आपको बोल दिया। मगर अगर किसी ने आपको बोल दिया स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, तो क्या ये ठीक कर पाते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या ये ठीक कर पाते हैं? नहीं, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करके आप अगर उसको सही भी कर दे तो क्या ये ठीक हो जाता है? क्या आपकी परेशानी ठीक हो जाती है? एक चीज देखिए, हाँ, बहुत सिवियर केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उस समय सर्जरी थोड़ा सपोर्ट कर देता। बट एक बात बताइए मुझे, सांस लेने का जोर क्या सर्जरी करके ठीक हो जाएगा? आपको ऑब्वियस के पीछे जाना पड़ेगा ना, कि आपने सर्जरी कर दी तो थोड़ा, सर्जरी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, सर्जरी इज ऑलवेज अ मैनेजमेंट। सर्जरी करके आप अपने फंडामेंटल स्ट्रेंथ को नहीं ठीक करते, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को नहीं ठीक करते, इम्यून स्ट्रेंथ को नहीं ठीक कर पाते, वो सर्जरी काम नहीं करती उसमें। तो जब स्लीप एपनिया है तो उसमें क्या बोलते हैं, अरे ऑक्सीजन कम मिल रहा है ना, बाकियों को तो ऑक्सीजन ठीक मिल रहा है, आपको ही कम क्यों मिल रहा? हाँ, तो उसमें बात, स्लीप एपनिया एक्चुअली प्रॉब्लम किस बात की है, कि सांसों का जो स्ट्रेंथ है ना, लेने का, रिदम मेंटेन करने का स्ट्रेंथ है, वो नहीं है। वो रिदम मेंटेन करने का स्ट्रेंथ ना तो गोली खा के आएगा, ना तो वो पावरफुल फूड खा के आ जाएगा, भोजन अच्छा करने से नहीं आएगा, इसका कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी, सर्जरी करके नहीं आएगी स्ट्रेंथ। नहीं तो सभी ठीक हो गए होते, प्रॉब्लम तो बढ़ी जा रही है, ठीक तो हो नहीं रहा कोई। तो ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो है, जिसकी वजह से सांसों का एक रिदम मेंटेन होता है, वो तो लाना ही पड़ेगा। देन ओनली देयर इज अ ट्रीटमेंट, तभी आप उसे ट्रीटमेंट कहेंगे, अदरवाइज तो ट्रीटमेंट नहीं होता वो। तो एक बात बताइए मुझे, आयुर्वेद में जितने भी ये लंग का इश्यू होता है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, इन सबको वात कफ दोष कहते हैं। व्हाट इज वात? एक्चुअली आयुर्वेद भी आजकल एलोपैथी की तरफ पड़ी जा रही है, इसलिए प्रॉब्लम वहां पे है, वहां वो भी सोल्यूशन नहीं दे रहे। वात का बेसिकली मतलब होता है प्रेशर, आपके शरीर के अंदर कितना प्रेशर मेंटेन कर पा रहे हैं आप। क्या सांस को रोकते हैं जब तो आप प्रेशर बढ़ाते हैं अपने बॉडी का, अपने लंग्स का प्रेशर बढ़ाते हैं, वो एक तरीका है जो ये वात को ठीक करने का तरीका। तो प्रेशर ग्रेडियंट खराब हो गया तो स्लीप एपनिया हुआ। आप सोच रहे हैं कि गूगल जो बोल रहा है, गूगल बाबा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, तो बीमारी कम क्यों नहीं हो रही? आखिरकार तो स्टेरॉइड खिलाएंगे ना आपको, ठीक तो करेंगे नहीं। एक गोली से 2, 2 गोली से 4, 4 से 16 तक आ जाएगी, 20 तक आ जाएगी। लोगों को मैंने देखा है 16-16 गोलियां, 20-20 गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि आप इलाज कर ही नहीं रहे अपना। प्रेशर ग्रेडियंट को ठीक कैसे करोगे बॉडी का? मुझे एक गोली बता दीजिए, एक दवाई बता दीजिए दुनिया में जो करेगी है। तो गोली खा के या फिर स्टेरॉइड लेके या वो इनहेलर लेके आप ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे, मैनेजमेंट कर रहे हो ना। झटका दे दिया बॉडी को, जरा सा थोड़ा आराम मिल गया इसको, स्टेरॉइड खा लिया, रिएक्शन कम हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स ही कम हो गया, मगर वो अच्छा काम तो नहीं कर रहे आप अपने बॉडी को कमजोर करते जा रहे हो। स्टेरॉइड खा के, इनहेलर लेके कौन ठीक हो गया इस दुनिया में? एक इंसान बता दीजिए। सो यू आर नॉट डूइंग ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे, तो ठीक कैसे होंगे? पहली बात ये बताइए। तो प्रेशर ग्रेडियंट को कोई दवाई तो नहीं मेंटेन कर सकती, है ना। अगर आपके रिदम हो, ब्रेथ का रिदम ठीक होगा तभी आप काम करने लायक भी बनेंगे। अगर काम करेंगे तो सांस फूलने लग जाएगी, तो वो तो कुंभक ही करेगा, और कोई चीज कर नहीं सकती, और कोई चीज कर नहीं सकती। आप प्लीज अपना
थोड़ा कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, जो आप पढ़े लिखे हैं उसको छोड़ के थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, तब आपको समझ में आएगा और सोल्यूशन मिलेगा। इसलिए यहां पे सोल्यूशन मिलता है, इसलिए आप यहां पे दवाइयां छूट जाती हैं, आपकी लाइफ नॉर्मल वापस बनती है, क्योंकि आपने वो प्रेशर ग्रेडियंट को सही किया, आपने टेम्परेचर ग्रेडियंट को सही किया। वो कोई दवाई नहीं कर सकती और वो कोई फूड नहीं कर सकता। कुंभक कीजिए और वापस से अपनी लाइफ को वापस लेके आइए। There are many people who suffer from mental issues like bipolarity, schizophrenia, claustrophobia, and dementia you have mentioned in your lecture also. So how does Shadang Pratishtha help such people? Okay. देखिए, if I start talking about it in depth, you'll not be able to comprehend or understand it. But मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसानी से, आसान शब्दों में, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कोई चीज ऐसा बताऊं ताकि आपको उसका आइडिया लगे। So when you say mental issues, माइंड के साथ भी कोई भी इशू जब आप बोलते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, आपका माइंड है कहां पे? आप मुझे पॉइंट आउट कर दो कि ये मेरा माइंड है, यहां पे प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर देंगे। तो क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने माइंड को? आपका ब्रेन माइंड नहीं है, ठीक है ना, ब्रेन माइंड नहीं है। सो माइंड का मतलब क्या है? फिर हमको डेफिनेशन बदलना होगा, हमको अपनी सोच बदलनी होगी, माइंड का डेफिनेशन बदलना होगा। जो अभी पाश्चात्य डेफिनेशन है माइंड का, वो तो ठीक काम नहीं करता, क्योंकि एक भी दवाई नहीं है दुनिया में जो कि मेंटल इश्यू को ठीक करती, बन ही नहीं सकती। और वो खुद ही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये दवाई खा के आप मेंटल इश्यू तो ठीक नहीं कर सकते। हम थोड़ा वो कहते हैं कि भाई किसी को टेम कर सकते, किसी जानवर अगर ज्यादा खुराफात कर रहा है तो हमने उसको बेहोश कर दिया, यही कर सकते हैं साहब, उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि उसका डेफिनेशन ही गलत है, आपको मालूम ही नहीं कि वो क्या है। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये जो आप इतनी सारे शब्द बोलते हैं ना, हाँ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, क्या कहते हैं वो, सीओपीडी, ये जो इतने शब्द बोलते हैं ना, क्या किसी को मालूम है कि ये क्यों होता? आपने नामकरण तो कर दिया था, हिंदुस्तानी लोग पप्पू, चप्पू, टप्पू ऐसा भी रख लेते नाम, मगर नाम रखने से कोई बीमारी ठीक होती है क्या आज तक? तो ये बीमारी होती क्या है मालूम ही नहीं है किसी को। आइडिया है, अगर मालूम होता तो ठीक कर लेते। मुझे एक इंसान बता दीजिए ठीक हो गया, मुझे एक इंसान बता दो जो जिसका मेंटल डिजीज दवाई खाने से ठीक हो गया। नहीं, उसके लाइफ में कोई कंट्रोल लाने से ठीक हुआ, जिसको हम लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन कहेंगे। लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल लाने से ठीक हो गया, मगर दवाई खा के नहीं ठीक हुआ। हां, दवाई उसका श्रेय ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है कि उसने लाइफस्टाइल चेंज किया, साथ में दवाई ली, तो हम दवाई को भी मान लेते हैं दवाई लेके ठीक हो गया। ऐसा नहीं हुआ, एक भी इंसान दवाई लेके केवल ठीक नहीं हुआ। हां, लाइफस्टाइल को चेंज करने से उसको भी फर्क पड़ा, मगर क्या वो इवॉल्व हो पाया है? उसे बिल्कुल ही 100% निकल पाया है? ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग जो ऐसे होते हैं जो मेंटल डिजीज के साथ सफर कर रहे होते हैं और वो कुछ समय तक निकल जाते हैं और फिर वापस आ फंस जाते हैं उसमें। ऐसे केसेस आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मेंटल डिजीज है क्या? मेंटल डिजीज बेसिकली आपके ऊपर आपका कंट्रोल से ठीक होगा। आप अपने ऊपर कंट्रोल करते कैसे हैं? क्या इसके बारे में बात करें? क्या इसके बारे में बात करें? आप कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आप अपने शरीर से शुरू करेंगे और थोड़ा आगे 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 जाते जाएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल, एक हिट मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है? आपने बहुत सारी किताबें शायद पढ़ी होंगी जो बोलती है माइंड पे कंट्रोल करने का तरीका बताती है, मगर कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए आपके माइंड कंट्रोल में आता नहीं है। अभी एक काम करेंगे, अभी आप अपनी सांस को रोक के सोचने की कोशिश करेंगे।
सांस भरें, रोक लें और सोचने की कोशिश करें। सांस भर के रोक लें और सोचने की कोशिश करें, तो आप क्या देखेंगे? मुश्किल हो जाता है सोचना। क्या देखेंगे? मुश्किल हो जाता है सोचना। एक और एग्जांपल देता हूं, मुंह खोलिए, मुंह खोलें और सोचने की कोशिश करें, तब भी मुश्किल हो जाता। और आपने जाने अनजाने कहीं पीछे सांस रोक ली है। तो कहने का मतलब, अगर माइंड पे भी आपको कंट्रोल करना है तो ये जो होल्डिंग फैक्टर है ना, ये बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, बॉडी पे कंट्रोल कैसे करते हैं? कोई वेट उठाते हैं तो सांस रोक के उठाते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, उंगलियां फंसा लो, खींचिए। खींचते कैसे हैं? सांस रोका ना। पुश कैसे किया? सांस रोका। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी करिए, कैसे करते हैं? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड, सांस को रोक के ही कंट्रोल करते हैं उस पर। तो अगर बॉडी के एक्शन पे आपका कंट्रोल खत्म हो गया, नहीं कर पा रहे, हाथ पांव उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, उतनी क्षमता नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां पे आ गई? आपकी ब्रेथ होल्ड में प्रॉब्लम आई। आपकी ब्रेथ होल्ड में प्रॉब्लम आई। ऑर्गन फंक्शन किस पे करते हैं? उल्टी किया है सबने, सबने किया होगा कभी ना कभी। सांस रुकती है उल्टी होने से पहले। छींका होगा सभी ने, सांस रुकती है। पेट का मल त्याग करना है, कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा जोर लगाते हैं सांस रोक के। अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी आपको ठीक करना है तो सांस रोक के उसको टाइट करते हैं, खींचते हैं, उंगलियां कटकाते हैं, या फिर उसको हाथ को टाइट करेंगे, नस चढ़ जाती है तो आप वहां पे ठीक करने की कोशिश कैसे करते हैं? सांस रोक के वहां पे एक टेंशन लाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं है? अगर आप अपने शरीर को स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेच करने में सांस रुकती है, तब आप स्ट्रेच कर पाते हैं। तो मैं बताने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूं कि आप फिजिकल मूवमेंट हो, कोई भी फिजिकल मूवमेंट हो, वो सांस रोक के ही कंडक्ट करते हैं। ऑर्गन का फंक्शन भी ऐसे ही होता है जो आपको पता नहीं चल रहा। अंदरूनी शरीर के अंदर भी ऐसा ही हो रहा। आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, डर लग गया, सांस रुक जाती है? रुकती है कि नहीं रुकती? डर जाते हैं, सांस रुकती। सांस रोकना प्रोटेक्शन भी है आपका। अगर कोई बहुत हिलती डुलती गाड़ी में जा रहे हैं और एक आपने वहां पे खंबे को पकड़ रखा, जितना हिलेगी गाड़ी उतना टाइट पकड़ लोगे ना। कोई आपको हिट करेगा, कोई आपको मारेगा, सांस रोक के बचाओगे ना अपने आप को, सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लेंगे। तो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी ब्रेथ होल्ड कुंभक है। ऑर्गन फंक्शन किस तरीके से होता है? क्या आप ऑर्गन की तरफ में अपने ब्रेथ को लेके जा सकते हैं? लंग का इश्यू जो भी कह रहे हैं ना हम यहां पे, लंग में कोई भी इश्यू है, वो बेसिकली इनहेल कितना लंबा आप कर पाते हैं और कितना होल्ड कर पाते हैं, उसकी कैपेसिटी कहते हैं उसको। इनहेल करके होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम लंग का स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर आप मैक्सिमम इनहेल कर पाए और उसको 4 गुना ज्यादा उसको होल्ड कर पाए तो आपके लंग अच्छे हैं, वरना तो आपके लंग अच्छे नहीं हैं। यानी कि अगर आप 10 काउंट का इनहेल करते हैं और 40 काउंट का आप होल्ड कर पाते हैं, तभी आपके लंग अच्छे हैं, वरना आपके लंग अच्छे नहीं। दूसरी बात, इनहेलेशन जो होता है ना बॉडी में, इनहेल करने की कैपेसिटी जो होती है ना, वही हीट जनरेट करती है, वही हीट जनरेट करती है। और इनहेल करके होल्ड जो है वो आपके लंग फंक्शन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा और चीज आप देखेंगे, आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। केवल इनहेल करके होल्ड करना ही नहीं होता, इसको लगातार लंबे समय तक कर पाना, तभी जाके आप इसको बढ़ा पाएंगे ना। आपने 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर दिया, दैट इज नॉट स्ट्रेंथ। आपने जोर लगा के 1-2 बार कर देंगे, मगर नेचुरली अगर आपके बॉडी में वो क्षमता है, तभी जाके आपका लंग स्ट्रांग बनेगा। वही नेचुरल क्षमता क्रिएट करने की कोशिश में प्रैक्टिस किया जाता है। आप 3 महीना प्रैक्टिस करेंगे और आपकी वो क्षमता बढ़ जाएगी, आप देखेंगे लंग क्लियर हो गया। लंग की जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी, देखो ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, जो हम कहते हैं श्लेष्म डिपोजिशन जो होता है, वो प्रोटेक्शन है। अगर आपका लंग की
फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो डिपोजिशन होता वहां पे। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए तो वो डिपोजिशन नहीं चाहिए फिर लंग को। तो इसीलिए आप देखेंगे कुंभक करेंगे, सीओपीडी ठीक हो गया। शुरुआत में निकलेगा वो बलगम निकलेगा, मगर धीरे धीरे करके आप देखेंगे 2-3 महीने के अंतराल में बिल्कुल फिट, लंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर आपको बचपन से भी लंग वीक है ना, आप कुंभक करना शुरू कीजिए। 1 साल के बाद आप कोई भी टेस्ट करा लो, कोई भी टेस्ट करा लो, कई बारी बचपन के स्कार्स होते हैं लंग के ऊपर, वो भी निकल जाते हैं। हमने देखा वो भी खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है नहीं, आपको तो पहले कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो आप क्या कर रहे हैं? जो बल आपके शरीर का वीक हो गया, जिसकी वजह से आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, वो बल आप इंप्रूव कर रहे हैं। जिसकी वजह से फंक्शन होता, ऑर्गन फंक्शन होता, वो चीज ठीक कर रहे हैं। आप रिदम बना रहे हैं अपने शरीर के कामकाज का। तो ये रिदम बॉडी का जो जैसे बनाते हैं ना, ये ही सटल लेवल पे यही माइंड है। ये शरीर और माइंड दोनों में फर्क नहीं है। आजकल तो एलोपैथी में भी इसको बोलने लगे साइकोसोमा। तो जो आपके शरीर का रिदम, जो कैपेसिटी है ना, वही आपके माइंड की कैपेसिटी है। जैसे मैंने बताया, शरीर का कामकाज आप सांस रोक के करते हैं, वही सांस रोकेंगे तो माइंड को भी रोक देते हैं। तो कुंभक करने से ये जो दोनों का इंटीग्रेशन है ना, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, इन दोनों का रिदम हम क्रिएट कर रहे हैं। जब ये दोनों का रिदम हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आपको देखने को मिलेगी एज एन रिजल्ट, अपने अंदर क्या देखने को मिलेगा कि जो मेंटल इश्यू है वो 100% निकल गया। सबसे पहले क्या जाएगा? मेंटल फ्रेमवर्क जो होगा वो ज्यादा ताकतवर बनेगा। उसी का रिजल्ट बॉडी पे आता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। आप ये नहीं सोचें कि आपके शरीर में अगर बीमारी है तो आपको मेंटल इश्यू है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने नहीं बोला। ऐसी बात नहीं है। आप ज्यादातर लोग देखेंगे मेमोरी कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक से याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। सांसों से लेके जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसका माइंड का रिदम तो खराब होगा ही होगा। टैग लेने की भी जरूरत नहीं है। टैग ले भी लिया तो भी सॉल्यूशन तो है नहीं। सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये रिदम, माइंड जब बोलते हैं ना, ये शरीर और मन का एक लय है। इसका लय को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ अगर आप बना देंगे तो आप देखेंगे कोई भी माइंड का डिजीज कह रहे हैं, देखो नाम अगेन दोबारा बोल रहा हूं, नाम कुछ भी हो, अगर शरीर का लय ठीक होगा तो आप देखेंगे आप माइंड का लय पहले ठीक होगा। उससे शरीर का लय बिना माइंड का लय ठीक हुए होगा ही नहीं। तो कोई भी मेंटल इश्यू से निकला जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम माइंड को अलग बोल रहे हैं शरीर से, कहीं और जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके डेफिनेशन को बदलिए। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि माइंड के हमारे कल्चर में माइंड को एक नहीं कहा जाता, इसके भी बहुत तह होते हैं। मनस कहते हैं हम, एक हिस्से को मनस कहते हैं, एक हिस्से को बुद्धि कहते हैं, तीसरे हिस्से को अहंकार कहते हैं, चौथे हिस्से को चित्त कहते हैं, फिर उसके फर्दर टुकड़े हैं। तो आप देखेंगे इन सभी तक पहुंचने का जरिया जो आपके पास में मिला हुआ है, जो अभी मैंने जैसे बताया, मुंह खोलो, सांस रोको, सोचने की कोशिश, वो आपने कड़ी पकड़ लिया, वो कुंजी पकड़ लिया। किताबें पढ़ने से माइंड पे कंट्रोल नहीं आता, कुंभक करने से बहुत जल्दी आता। Some people have also had surgery done, so किसी का lower lobe of the lung removed. Some people have had lung transplant also. So does this course help them? How? लंग ट्रांसप्लांट, जब आप ट्रांसप्लांट शब्द सुनते हैं तो आपको क्या समझना चाहिए कि ठीक नहीं कर पाए तभी दूसरा लगाया। क्या समझना चाहिए? किडनी ठीक नहीं कर पाए तो ट्रांसप्लांट कर दिया, लिवर ठीक नहीं कर पाए तो ट्रांसप्लांट कर दिया।
लंग ठीक नहीं कर पाए तो ट्रांसप्लांट कर दिया, हार्ट ठीक नहीं कर पाए तो ट्रांसप्लांट कर दिया। तो मुझे बताइए ठीक क्या करते हैं? जब ट्रांसप्लांट ही कराना है तो ठीक क्या करते हैं? क्योंकि ठीक केवल आपका शरीर करता है और कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। लाखों सालों से मानव शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी। ये पिछले 100 साल में बहुत बढ़ गई। बहुत रेयर होती थी बीमारी, बहुत रेयर, बहुत कम लोगों को बीमारियां होती थी 100 साल पहले। या फिर आप अपनी पिछले जनरेशन और उसके पिछले जनरेशन को सोच लीजिए, दादा के दादा, दादा के पिता या उनके पिता, वहां पे उनको कोई बीमारी नहीं थी। यहां तक कि आप अपने दादा के बारे में सोचेंगे तो उनकी फिजिकल कैपेसिटी आपसे बहुत ज्यादा थी, आपकी 10% भी नहीं होती। तो ये चीज हम नहीं सुनते अगर हम लाखों सालों की ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं। ये पिछले 50-100 सालों का ही प्रकरण है कि सभी बीमार होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि मानव शरीर में वो क्षमता, आपका शरीर बना ही है बचाने के लिए, अपने आप को हेल्थ के लिए बना हुआ है। आपका शरीर बीमारी के लिए नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आप इसके साथ में टॉर्चर जैसा व्यवहार करेंगे, क्रिमिनल बना देंगे अपने शरीर को, तो ये शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये टॉर्चर कब तक झेलेगा? तो अभी ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट क्या होता है आजकल? अभी कोरोना गया, कोरोना तो लंग को इन्फेक्ट करता है। तो शरीर कैसे हैंडल करता है? कोई भी वायरल इंफेक्शन से शरीर कैसे उसको बचाता है? टेम्परेचर बढ़ा देता है, बुखार करवा देता है। मगर आप उसे बुखार नहीं, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाने देते। आप एक डोलो खाओगे, पैरासिटामोल, क्रोसिन कुछ खा लोगे, तो ये बुखार करके ठीक करेगा, तो आपने इसको बोलोगे नहीं तू मत ठीक कर, हम समझदार हैं ज्यादा, है कि नहीं? ये उल्टी करेगा, आप उल्टी बंद कर दोगे, कहेंगे नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं करना। ये दस्त करेगा, आप दस्त बंद कर दोगे। ये दर्द करके बताएगा, बॉडी का इंफ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, दर्द का साइकिल काट दोगे, है कि नहीं? एक 2 किलो का बच्चा, जो आसपास का बच्चा जो पैदा होता है, उसको कितने सारे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, सब केमिकल है ना। आपका शरीर तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं होता, तो आपका शरीर केमिकल के लिए रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। आपका शरीर तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बना हुआ है। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बना है। आप कार्बोहाइड्रेट डालोगे तो इंसुलिन रिलीज होगा, कोई पैथोजन गया तो फिर इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसका। लेकिन आप केमिकल डालोगे तो क्या करेगा ये शरीर? ये तो खतरे में आ जाएगा, कहेगा ये क्या चीज है, और उसी को हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। कोई भी दवाई काम कैसे करती है? रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है? कोई भी दवाई किसी चीज को ब्लॉक कर देती है आपके शरीर में। आपका लंग फंक्शन नहीं कर पाएगा, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा दे देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टाइप का, है ना, या एस इनहिबिटर दे देंगे, शरीर में से पानी निकाल देंगे। तो आप क्या कर रहे हो? शरीर को काम नहीं करने दे रहे। आखिरकार तो आपको स्टेरॉइड दिया जाता है ना सारा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। आपके शरीर में जिस तरीके से शरीर काम करता है उसको रोक दिया जाता है, और इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो अगर आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलने लग गए तो कौन बचाएगा? अब आपको बता दीजिए। अगर आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलने लग गए तब तो सारी दुनिया बीमार हो जाएगी। हो रही है कि नहीं हो रही? कौन सी बीमारी एक बता दीजिए जो कम हो रही है दुनिया में। गिव मी वन एग्जांपल, कोई एक बीमारी बता दो जो कम हो रहा है, क्रॉनिक डिजीज एक बता दो। क्योंकि आप फिर फंस गए। अब तो अंग्रेज नहीं आए आप पे कब्जा करने के लिए, लेकिन वो दूसरे तरीके से कब्जा कर लिया आपके माइंड पे। हेल्थ कोलोनाइजेशन इसे कहते हैं। बीमारी ठीक नहीं करेंगे जी, लेकिन फिर भी आप वहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं हम बीमारी नहीं ठीक करते, लेकिन आपको दवाई खानी पड़ेगी, आप फिर भी दवाई खाओगे। तो ट्रांसप्लांट जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ ठीक नहीं हो सकता, तो इसीलिए ट्रांसप्लांट कर दिया। लेकिन अगर मौका देते शरीर को तो ये ठीक कर सकता था। आप इसके रिकवरी स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा देते, आप इसके इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा कर देते,
आप इसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को अच्छा कर देते हैं, तो ये शरीर अपने आप को ठीक कर लेता, जो कि लाखों सालों से करता आ रहा है, आज से नहीं, कोई एक आध साल की बात नहीं, 150 साल की बात नहीं, लाखों सालों से ये शरीर अपने आप को बचाता आ रहा है, ठीक करता आ रहा है। अभी क्या किया, अब तो कर लिया जी, अब तो ट्रांसप्लांट हो गया, अब तो आपको स्टेरॉइड रिजीम पे भी डाल दिया होगा, 3 महीने 6 महीने साल भर, आपके इम्यून शरीर फेंकेगा ना लंग को उसको, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको नंब कर देंगे। तो जिनकी भी सर्जरी या ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वीक हो गया, क्योंकि जबरदस्ती वीक किया गया ताकि वो झेल जाए उस ट्रांसप्लांट को। तो क्या उसको आपको बढ़ाना नहीं है? क्योंकि अगर बॉडी का रिस्पॉन्स वीक हो गया तो अभी तो केवल वेट करने की जरूरत है, आप मल्टीपल इश्यू में आएंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, केवल वेट करने की जरूरत। तो अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप कहां जा रहे हैं? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ में जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स ही तो बचाएगा बाकी ऑर्गन को भी। तो एक ऑर्गन तो आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, लेकिन बाकियों को तो आप स्ट्रेंथन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी वीक किया गया रिस्पॉन्स को। तो आइडियली इट शुड बी अ मस्ट फॉर पीपल हु हैव गॉन थ्रू ट्रांसप्लांट। सर्जरी करवाना सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता साहब, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सर्जरी कोई ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी मैनेजमेंट होता, सर्जरी मैनेजमेंट होता। एक जगह पे करवाए, दूसरी जगह पे तैयार है बॉडी सर्जरी करवाने के लिए, क्योंकि आपने ट्रीटमेंट तो किया नहीं, एक जगह पे मैनेजमेंट कर दिया थोड़ा। तो वो भी अगर आपको सर्जरी के एपिसोड्स कम करने अपनी लाइफ से, तो वंस अगेन अपने बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स को, आपको ऑर्गन फंक्शन को आपको वापस से स्टैब्लिश करना होगा, एटलीस्ट रिकवरी करनी होगी उसकी। और वो कौन करता है? वो कोई दवाई नहीं करती, दवाई आपको हेल्दी नहीं बनाती है, लेकिन दिमाग में बैठा हुआ है कि अच्छा ठीक है सर्जरी करा ली, अब सर प्रोटीन विटामिन ये वो खा लो तो अब हेल्दी हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे ऐसे ना, आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे जहां वो मल्टीविटामिन, बल्कि ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे मल्टीविटामिन और ये वो खा के इश्यू बढ़ गया, किडनी का इश्यू बढ़ गया, किडनी खराब हो गई, कैंसर जैसी सिचुएशन आ गई। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपने क्या किया उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपने क्या कर दिया, अपने बॉडी के ये मेटाबॉलिक रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस, ऑर्गन फंक्शन, ये सब वीक कर दिया। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उसको दोबारा से स्थापित किया जाए, दोबारा से ठीक किया जाए, आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो जाए? इसके लिए आप काम नहीं करना चाहेंगे तो काम करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर को, अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? वो कुंभक करके ही आपका बॉडी भी बढ़ाता, तो कुंभक करके आप बढ़ा दीजिए। एक्सरसाइज करेंगे, अभी हिम्मत नहीं होगी या एक्सरसाइज करने की इतनी हिम्मत नहीं है, टाइम ज्यादा लेता है एक्सरसाइज करने से, रिकवरी टाइम ज्यादा लेता है, इनडायरेक्ट होता है वो, डायरेक्टली आप ऑर्गन पे काम कर लो। फास्ट होगा, बैठे बैठे कर लोगे, जो एक्सरसाइज करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जाके आपको रिजल्ट बहुत लंबे टाइम में मिलेगा, वही फास्ट मिल जाएगा कुंभक करके, है ना। तो ऐसे लोग जो who have gone through surgery, they need a rehabilitation. Who have gone through mental episode, they need a rehabilitation. Who have gone through a very severe episode of disease, they need rehabilitation. Rehabilitation कुंभक है, कुंभक करके वापस ठीक हो जाइए, लाइफ में प्रॉब्लम्स को कम कीजिए, और कंपलसरी होना चाहिए ना रिहैबिलिटेशन। One last question. Though you have answered about schizophrenia, we have a mother over here. His son has recently started showing, which uncontrollable laughter, etc. Doctors have said schizophrenia, and they have also been to,
parents will go to any extent, so they've also gone to places to get right kya kuch aur outside influence hai. So she wants a little more answer about can schizophrenia be cured through this program or not. Question is it really schizophrenia, or somebody is tagging that because उनको लगता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपको टैग कर दिया गया, बच्चे को टैग कर दिया गया. अगर कोई नाम बोले कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, वो कौन इंसान बोल सकता है? जो उसको ठीक करता है ना, वही जानता है स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है. जो ठीक ही नहीं करता वो तो कुछ भी बोले. भाई हम तो डायबिटीज ठीक नहीं करते, फिर भी दवाई लेना पड़ेगा. अरे उसको डायबिटीज मालूम ही नहीं है, नहीं तो ठीक कर देता. हम तो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं करते, लेकिन ये दवाई लेके मैनेज करते रहो, तो वो जानते ही नहीं ब्लड प्रेशर होता क्या. ये तो स्किज़ोफ्रेनिया आपने मान लिया, मगर उनको बोलो है तो ठीक कर दो. पहली बात तो उनको मालूम ही नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या. उनको लग रहा है कि ऐसी चीज स्किज़ोफ्रेनिया के अंडर में हम डालते हैं, हम मान लेते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया. तो पहली बात ये कि टैग करना बंद कीजिए. मुझे तो ये लगता है कि अगर वो बच्चा हंस रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हंसी तो रहा है, कुछ परेशान तो हाँ, ये कई रीजन से हो सकता. मैं आपको बहुत रीजन बता सकता हूं, लेकिन क्या है, इन सब एरिया में बहुत कम रिसर्च करते हैं लोग. हुआ ही नहीं है, लेकिन आइडिया सब लगाएंगे. ठीक कोई भी नहीं करता. तो रिसर्च बहुत ज्यादा करने की जरूरत है. हमारे ना ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं. ये एक इजरायली साइंटिस्ट ने पता किया था, मगर उसको कभी समझ में नहीं आया कि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स ब्रेन में क्यों बैठे हुए हैं. या तो मानव जनता जो है, पहले सब के सब गांजा फूकते थे तो ये समझ नहीं आया उसको, किसी को समझ नहीं आया कि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं क्यों. कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक द्रव्य, एक हार्मोन कह लीजिए या एक कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, ऐसा निकलता है जो बना ही है ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए. तो ऐसे एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि योग कलाचार में इसकी ज्यादा बातचीत होती है कि इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो आनंदमय हो जाता है. ठीक है ना. तो उस इजरायली साइंटिस्ट ने जब इसकी खोजबीन की पूरी दुनिया में, तो पता चला कि इससे रिलेटेड एविडेंसेस केवल इंडिया में है, जहां पे लोग इसकी बात करते हैं. ठीक है ना. तो उसी के बेसिस पे उसने इनका नाम जो है आनंदामाइट करके कुछ ऐसा डाल दिया, क्योंकि आनंद की बात केवल यहीं पे उसको देखने को मिला. और कहा कि ब्रेन में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे वो बंदा अपने आप ही इतने आनंदमय स्थिति में होता है कि कुछ लोग तो ऐसे ही हंसते रहते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, मगर वो दुख नहीं है उनको. कहते हैं ना, ज्यादा खुशी होने से कभी कभी आंसू आ जाते हैं. अच्छा, कभी कभी ये चीजें अकस्मात सडन भी हो सकता, जो कि एक पीरियड तक चलेगा. जब भी ऐसी चीज होगी आपके शरीर के अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दैट, कई बारी वो 3 महीने, 6 महीने, और कई बारी वो 1-1.5 साल तक भी चलता. उस बीच में आप उसका इलाज कराने लग जाएं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा हॉच पॉच हो जाएगा सारा, उसका ब्रेन का सिस्टम बिगड़ जाएगा. अच्छा, एक बात मैंने बता दिया. दूसरी बात, क्या ये ऊपरी हवा हो सकती है? हां, हो सकती. तो अगर आप तांत्रिक के पास जा रहे हैं, केवल ध्यान रखिए कि वो तांत्रिक अच्छा होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये भी हो सकता है. तीसरी बात,
क्या इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर किसी भूत ने आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपका कंट्रोल कम है, उसका कंट्रोल ज्यादा है ना। तो आप अगर अपना कंट्रोल ज्यादा कर दें तो उसका कंट्रोल कम हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करते कैसे, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया कि कुंभक के जरिए ही करते हैं। तो कुंभक फैक्टर अगर आपका बढ़ जाए तो आप क्या देखेंगे कि भूत प्रेत का भी कंट्रोल आप पे कम होगा। ठीक है ना, आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। तो इसीलिए भूत प्रेत आपके फ्रेंडली हो जाएंगे, मतलब आप पे जो कंट्रोल नहीं कर पाता फ्रेंडली हो जाता, नहीं तो दुश्मन होता ना। तो आप पे कंट्रोल अगर नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंडली हो जाएंगे। तो ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि महादेव के साथ में भूत प्रेत रहते हैं क्योंकि वो कैवल्य कुंभक हैं। महादेव कौन है? कैवल्य कुंभक हैं। जो कुंभक मैं सिखा रहा हूं मेरे गुरु महादेव हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो उनका इतना कंट्रोल है कि भूत प्रेत भी फ्रेंडली हैं। ठीक है ना। तो एक चीज जो जरूर आपको करनी चाहिए, बाकी आप करिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, जब तक कंट्रोल नहीं आता तब तक अगर कोई तांत्रिक काम कर जाए, तांत्रिक विधि काम कर जाए तो क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि तंत्र ज्यादा काम करता है एलोपैथी से। तो तंत्र सुपरस्टिशन नहीं है, एलोपैथी सबसे बड़ा सुपरस्टिशन है क्योंकि वो काम नहीं करता। कम से कम तंत्र कभी भी काम करता। आपकी दवाइयां काम नहीं करती साहब, आपको ठीक नहीं करती, मैनेज कर देती, थोड़े झटका दे देती है आपको बिगाड़ के। तो सबसे बड़ा सुपरस्टिशन तो वही है। मगर अगर तंत्र विधि भी करवाना है तो आप करवाइए। कभी कभी इसका कुछ ग्रह दशा भी होती है जो थोड़े टाइम तक चलती है ना। कुछ ग्रह दशा भी होती है जो थोड़े टाइम तक चलती है, फिर ठीक हो जाता है। मगर अपने ऊपर कंट्रोल करना तो सर्वोपरि है ना। अपने ऊपर कंट्रोल लेके आना ये सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है। बाकी सब चीज करिए ना करिए, हम उसकी तरफ में नहीं जा रहे। हम क्या कह रहे हैं, कुंभक कंपलसरी है साहब, कुंभक कंपलसरी है, बाकी आप जो मर्जी करवाओ, ये आपकी लाइफ बदल देगा। और बाकी भी चीज कभी काम करेंगी नहीं करेंगी वो डिपेंड करता। Thank you so much, Swamiji. I think we had answers to so many questions today and very, very wonderful explanations. Though some of these questions keep on coming, and every time you answer, it opens up a new perspective for us, people who are part of the program, people who are responsible for running the programs. ये cameras क्यों off हो गए हैं? हाँ, cameras on करें तो एक वो ग्रेट इंडियन फेयरवेल होता है, तो हम आधा घंटा नहीं लेंगे आपका, डोंट वरी। अब एक ही सवाल बचा है, वेदर यू विश टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, start coming out of all the big names that have been told to you, COPD, ILD, whatever, or you want to wait and be the last person on this planet to start coming out of your condition. Okay? जिसको भी डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं हो सकता, आप वैसे ही डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आते ही नहीं, आप घर पे बैठे होते, डॉक्टर की बात सुन रहे होते। ओके, सो दैट शुड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। आप डॉक्टर की बात नहीं मानना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं और पूछ रहे हैं। और सुनीता जी, आप तो प्रोग्राम में भी रह चुके हैं, आपने कुंभक भी किया हुआ है, सो यू नो हाउ इट वर्क्स एंड so on and so forth. So we have answered questions. So wonderful, great. Thank you so much for joining the webinar. We will be posting the recording a little later. Those who could not attend or wish to watch it again. So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, thank you so much for joining. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास में आइए, सोल्यूशन वहां मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज एडवाइस करके नहीं मिलेगा, क्लास ज्वाइन करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। काफी लोग आप में से हैं जो अभी इन्होंने एनरोल किया है, वो काफी समय से हमें देख रहे हैं, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन द क्लास। यस, सो दैट्स ओके, ऑनलाइन प्रोग्राम है, सो देयर इज एन इशू ऑफ कि ये लोग सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो
अगर हम जो बोल रहे हैं आपको वो सही लगता है लॉजिकली, तो आप आइए। और that's it. So thank you so much. People who are still here, we will keep the webinar open for 1 more minute. You can leave your number so that we can reach out to you and answer your questions, etc. Thank you. In the meantime, I'll play this for people who are still here. जी, जैसे कि मैंने लिखा था शुरू में ही कि मुझे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा और स्पुटम थ्रू आउट द डे चलता था। अब ये कुंभक के 6 हफ्ते जो किया है, 4 से 5 चीजें ऐसी हैं जो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम था वो पल्पिटेशन होता था, वो मेरा खत्म हो गया। मुझे पसीना आता था रिपीटेडली, वो ठीक हो गया मेरा। उसके बाद बेड ब्रीथ होती थी, मुझे घर वाले बोलते थे कि आप बात करते हो स्मेल आती है, वो उसका रीजन यही था, स्पुटम आता था, वो मेरा खत्म हो गया। यानी 2 दफा जो मैं कुंभक करता, उसी में जितना भी होता है ना वो अपना बलगम, वो सारा मेरा जो है ना निकल आता है बाहर। उसके बाद में थ्रू आउट द डे मुझे नहीं रहता, वो अच्छा हो गया है। और सबसे ज्यादा जो मेरा बेनिफिट हुआ है, शुगर मेरी जो है ना अप डाउन होती थी, वो मेरी ठीक हो गई है। वो बिलो 200 रहती है आफ्टर मील, और जो है फास्टिंग वाली वो मेरी 130 से 140 रहती है। यानी मैंने डायबिटिक वाला सेशन तो नहीं किया, फिर भी ये अस्थमा वाले सेशन में भी मैंने देखा काफी चीजें मेरी जो है ना इम्प्रूव हुई हैं। वो जो बात हम सुनते थे ना सर, कि तंदुरुस्त मन दुरुस्त, सारी चीजें अभी अच्छी लगती हैं। खान पान पहले बोलते थे कि संतरा मत खाओ, मौसमी नहीं खाओ, केला मत खाओ, इससे अस्थमा बढ़ता है। आप बोलते हो ना नोनी जी कि सिस्टम जो है ना वो आपका खराब है, सिस्टम को बेहतर बनाओ। ये सिस्टम हमारा भी अच्छा हो गया है, अब अंदर बाहर जाने में मजा आ रहा है। जो भी घर में बन रहा है पक रहा है, उसमें टेस्ट आ रही है। पहले स्वाद नहीं आता था, अभी स्वाद आ रहा है। यानी थ्रू आउट मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि एक नई जिंदगी मिली है। थैंक यू वेरी मच सर। I'm very helpful for this therapy. I come across this by chance on my mobile, and I'm very happy because I always used to panting while climbing the stairs. Still, it is there. It has not gone, but I think with gradual practice, it will be over. सबसे पहले तो कमलेश जी का थैंक्स करूंगी। मेरी फर्स्ट बात इन्हीं से हुई थी, तो इनकी आवाज से ही पता नहीं इतना कमेंडेबल थी, मैं इम्प्रेस हो गई कि नहीं मुझे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद जब मुझे आपके जैसे मेंटर मिल गए, तो फिर तो हर क्लास में मैं जहां भी थी किसी किसी टाइम कैमरा ऑफ भी करके मैंने अटेंड किया। अभी आप बता रहे थे मैंने शादी में भी अटेंड किया क्लास, कैमरा ऑफ रखा लेकिन मैंने क्लास नहीं छोड़ा। एंड मैं डेली प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, और नो यूज ऑफ इनहेलर भी छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम कभी कभी होती है सोने से पहले, बट एक मन में ये विश्वास है कि ठीक है धीरे धीरे ये भी चली जाएगी। सर मैं 1999 से इनहेलर ले रहा हूँ कंटिन्यूसली 4 डोजेस, और अभी 2007 के बाद एक इनहेलर और ऐड हो गया था, तो टोटल दोनों इनहेलर से मिला के 8 पफ हमें लेना होता था, 4 मॉर्निंग में 4 इवनिंग में, और उसके बाद भी कभी कभी 2-3 बजे के बाद सफोकेशन होता था तो एक और डोज लेना पड़ता था, यानी टोटल 9 डोज पर डे। अभी मैंने सिर्फ 10 दिन किया है, 8 से 10 दिन, उसमें यह रहा कि मैं काफी कंफर्टेबल महसूस किया, तो अभी धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया। इवन कि कल मैं होल डे सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग कोई इनहेलर हमने नहीं लिया, सिर्फ नाइट में एक पफ लिया सिंगल। लेकिन फिर हमने सोचा अचानक से छोड़ना ठीक नहीं है, तो जस्ट फॉर माई मेंटल सेटिस्फैक्शन एक सिंगल डोज मैं मॉर्निंग में ले लेता हूँ और एक सिंगल डोज नाइट में। और मेरी छाती में कंजेशन इतना होता था कि घड़ एवरी टाइम घड़ होता था, और अब बिल्कुल क्लीन है, कितना भी करिए सांस के साथ कोई खड़खड़ाहट, कोई इस तरह की आई एम नॉट फीलिंग हियर। तो ये है सर आपके लिए। मैं वी थैंक ऑल ऑफ यू हु सजेस्टेड मी फॉर दैट। आई एम रियली ब्लेस्ड विद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।